تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں محمد اظہار. پیش خدمت ہیڈ لائنز. چیف منسٹر تلنگانہ اور بی آر ایس صدر کے چندرشیکھر راؤ کل نئی دہلی میں بی آر ایس پارٹی دفتر کا افتتاح انجام دیں گے اور پارٹی پرچم کشائی انجام دیں گے. وزیر صنعتیں کے ٹی راما راؤ نے ریاست سے تعلق رکھنے والے صنعت کاروں سے اعلیٰ معیار کا سوچنے اور بین الاقوامی معیار کی اشیاء تیار کرنے کی اپیل کی. مرکزی حکومت نے آج واضح کیا کہ مرکزی حکومت کے ملازمین اور پینشنرز کو جاری کیے جانے والے ڈی این ایس الاؤنس اور ڈی این ایس ریلیف بقایا جات جو کووڈ وبا کے دوران روک دیے گئے تھے قابل عمل نہیں سمجھا جائے گا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دونوں ایوانوں کو بتایا کہ توانگ سیکٹر میں چینی افواج کے ساتھ جھڑپ میں کسی بھی قسم کا جانی یا شدید نقصان نہیں ہوا ہے. ترقی یافتہ ممالک ماحولیاتی انصاف کے بارے میں مخلص نہیں. ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر. ہندوستانی وزیر خارجہ سبرامانیم جے شنکر نے ترقی یافتہ ممالک کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ امیر ممالک موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے متاثر ہونے والے ممالک کی مدد کے وعدوں کے باوجود بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں. وزیر نے کہا کہ جب موسمیاتی انصاف کی بات آتی ہے تو یہ ممالک مخلص نہیں ہیں جو موسمیاتی تبدیلی سے متاثر غریب ممالک کو معاوضہ دینے کی کوشش کر سکیں. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پیر کے روز ابوظہبی گلوبل مارکیٹ میں منعقدہ دوسرے انڈیا گلوبل فورم کے دوران کہا کہ وہ ممالک جو کاربن کے اخراج میں سرفہرست ہیں وہ وعدہ کرتے رہے ہیں کہ وہ دوسروں کی مدد کریں گے، لیکن واضح طور پر انہوں نے دنیا کی مدت حیات کو کم کر دیا ہے. وہ کچھ بہانے یا دلائل لے کر آتے ہیں لیکن عملی طور پر صفر ہیں. The weight of different nations and different regions in the world have changed in the last many decades. And a lot of that derives from globalization. Some of it is autonomous of globalization. And so when you think today of which are the crucial regions, which are the important countries, rebalancing tells you that they're not the same or not the same to the same extent as before. As rebalancing advances, I would pick a third concept, multipolarity, which is that some nations and maybe some groupings have acquired that they're regarded in the international system as one of the poles. And the number of poles from an era 75 years ago where we thought in binary terms of the US and the USSR or the West and the East, today you actually have more independent or autonomous centers of decision making. So the more rebalancing carries on, the more we are going to see the emergence of multipolarity. So the flow in that sense would be the deeper that globalization gets, the more you're going to see rebalancing. The more rebalancing you get, the more you're going to see the emergence of multipolarity. But having said all this, it's also true that there are the constant practices and traditions of international relations that remain at work. International relations are still primarily defined by the nation state, by competition and collaboration among nation states, by convergences among them. So while we often tend to talk about the changes, and rightly tend to talk about the changes in the world, I think it's important, particularly for practitioners of not just diplomacy, of anybody who has anything to do in the world, to remind themselves that while the world changes, there are constant factors at work. There are sometimes historical factors at work. So my description today for the state of the world, for all the advancements of economy, of technology, the progress we see even of connectivity, that about 3 decades ago, the world was described, not literally, as a time of the end of history. I think today
we are seeing a time of the return of history. Return of history in the sense of countries and regions which were relatively more dormant or less able, less capable, now actually seeking out. वज़ीर आला नीतीश कुमार का ऐलान, 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव की क़यादत में लड़ा जाएगा और मैं पीएम के ओहदे का उम्मीदवार नहीं। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। रियासत के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि साल 2025 के असम्बली इंतखाबात तेजस्वी यादव की क़यादत में लड़े जाएंगे। इसके साथ ही वज़ीर आला नीतीश कुमार ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि वो वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार नहीं हैं। सबके साथ मिलकर वो बीजेपी को हटाना चाहते हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ग्रैंड अलायंस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग ख़त्म होने के बाद एक चौंका देने वाला बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश ने अचानक एनडीए छोड़कर अज़ीम इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया था। इसकी वजह से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने एक बार फिर ऐसी बात कही है जिससे रियासत की सियासत सरगर्म होने का खदशा है। रियासती राजधानी पटना में मंगल को ग्रैंड अलायंस लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा, साल 2025 में होने वाले बिहार असम्बली इंतखाबात तेजस्वी यादव की क़यादत में लड़े जाएंगे। मैं वज़ीर आज़म के ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूँ। हम सब सिर्फ बीजेपी को हटाना चाहते हैं। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने मीटिंग में शराबबंदी को लेकर की जा रही बयानबाजी पर भी नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने लेजिस्लेटर पार्टी लीडर अजीत शर्मा और दीगर मेंबरान असम्बली को मशवरा दिया। सीएम नीतीश ने कहा, जो लोग शराबबंदी पर बकवास कर रहे हैं, क्या वो नहीं जानते कि शराबबंदी सबकी रजामंदी के बाद नाफिज किया गया था। शराबबंदी पर बकवास करने से बेहतर है कि इसे कारआमद बनाने के तरीके पर काम किया जाए। जी है, अब इनको हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ा करके और आगे हमको तो जितना करना था अभी सबसे आगे और हमको करवाना, आगे करवाना है तो सब कुछ करवाएंगे। सब कुछ को एक एक बात समझ रहे हैं और एक एक बात को देख रहे हैं और एक एक काम करने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। हमारे अधिकारीगण भी सब ठीक से काम कर रहे हैं। सब तरह की सुविधा है, सबको है। लेकिन अब इन सब चीजों पर जरा ध्यान रखिएगा कि हमको तो जितना सेवा करना था, मेरा बतवा जरूर मान लीजिएगा, कि मेरी राय नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की बात जो है उसी को ध्यान में रख करके ही हम एक एक काम को करवाए हैं और आगे बढ़वाए। ज़ानियों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस की दाखिल अर्जी पर समाज से सुप्रीम कोर्ट की जज बेला एम त्रिवेदी खुद को अलग किया। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने बिल्किस बानो के ज़रिए दाखिल अर्जी पर समाज से खुद को अलग कर लिया है। बिल्किस बानो की ये अर्जी इन सभी 11 ज़ानियों की जेल से रिहाई के ख़िलाफ़ है, जिन्हें सज़ा मुकम्मिल होने से पहले ही आज़ाद कर दिया गया। अर्जी में बिल्किस बानो ने 2002 के गोधरा फसादात के दौरान इज्तिमाई इस्मतदारी और अपने कुंबे के कई अरकान के कातिलों को वक्त से पहले दी गई रिहाई को चैलेंज पेश किया है। आज इस मामले पर समाअत शुरू हुई, लेकिन जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के समाअत से अलग होने के फैसले के सबब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब इस मामले में समाअत कब होगी, इस सिलसिले में भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक बार फिर मरकज़ी हुकूमत को भेज सकता है नए नामों की सिफारिश। रवां हफ्ते मीटिंग का इम्कान। हाल ही में मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की तरफ से सिफारिश करदा 19 नामों को खारिज कर दिया था और फाइल को वापस कर दिया था। अब उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि जल्द ही कॉलेजियम की मीटिंग हो सकती है और नए नामों की सिफारिश करने पर गौर किया जा सकता है। दरअसल जस्टिस दीपांकर दत्ता के सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद अब इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम हुकूमत के पास एक बार फिर से नए नामों की सिफारिश भेजेगा। हिंदुस्तानी करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने के मुतालिबे पर पार्लियामेंट में हुकूमत का अहम बयान। दिल्ली की वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में करेंसी नोटों पर हिंदू देवी और देवता लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर छापने के मुतालिबा किया था। इस मुतालिबे पर हुकूमत ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है। हुकूमत ने पार्लियामेंट को बताया कि इस हिंदुस्तानी करेंसी नोटों पर नामवर शख्सियात, देवी देवताओं और हत्ता के जानवरों की तस्वीर छापने की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इसके साथ ही हुकूमत ने करेंसी नोटों से बाबा कौम महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने की किसी भी मंसूबे से इनकार कर दिया है। रेलवे स्टेशन की दीवार पर सब्ज रंग, हिंदू तंजीमों का एहतजाज। कर्नाटक के कलबुर्गी रेलवे स्टेशन की दीवारों पर सब्ज रंग करने के खिलाफ हिंदू तंजीमों ने मंगल को एहतजाज किया।
तंजीमों के कारकुनों ने कलबुर्गी रेलवे स्टेशन पर लगे सब्ज रंग को फौरी तौर पर निकाल देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया और कहा कि रेलवे स्टेशन को मस्जिद बना दिया गया है, जिसके बायस रेलवे स्टेशन पर कशीदगी पैदा हो गई। इन कारकुनों ने 15 दिन के अंदर सब्ज रंग न निकालने पर संगीन नताइज की धमकी दी। हवाई सफ़र के लिए बढ़ती भीड़ के दरमियान इंडिगो ने मुसाफिरों को परवाज़ से 3.5 घंटों कबल हवाई अड्डे पहुंचने का दिया मशवरा। हवाई सफ़र करने वालों की बढ़ती हुई भीड़ के दरमियान इंडिगो एयरलाइंस ने मुसाफिरों को घरेलू परवाज़ से कम 3.5 घंटे पहले दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचने के लिए एक मशवरा जारी किया है। एयरलाइन ने मुसाफिरों से बेहतर सिक्योरिटी जांच के लिए 7 किलोग्राम वज़न का सिर्फ एक हैंड लगेज ले जाने का मशवरा दिया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में जख्मी 6 जवानों की गुवाहाटी के फौजी अस्पताल में कराया गया दाखिल। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर को चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ झड़प के दौरान जख्मी होने वाले हिंदुस्तानी फौज के 6 फौजियों को गुवाहाटी के वाशिष्ठ में वाक़ फौज की 151 बेस अस्पताल में हवाई जहाज़ से ले जाया गया। ज़राए ने बताया कि जख्मी जवानों को 9 दिसंबर दोपहर को तवांग से हवाई जहाज़ से इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया। दुनिया में पहली बार एक मुल्क में नई नस्ल के लिए सिगरेट की फ़रोख्त गैर कानूनी करार। न्यूजीलैंड में एक नए कानून की मंजूरी दी गई है, जिसका मकसद आने वाली नस्ल के लिए सिगरेट ख़रीदना कानूनी तौर पर नामुमकिन बनाना है। न्यूजीलैंड की जानिब से मंजूरी किए गए कानून के तहत 14 साल या इससे कम उम्र अफराद के लिए ज़िंदगी भर के लिए सिगरेट ख़रीदना नामुमकिन बनाया जाएगा। न्यूजीलैंड की एसोसिएट वज़ीर सेहत आयशा विराल ने बताया कि कानून की मंजूरी से हज़ारों अफराद ज़्यादा लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे, जबकि तंबाकू नोशी से होने वाली बीमारियों जैसे कैंसर, हार्ट अटैक और फालिज समेत दीगर पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर बच सकेंगे। इस कानून के मुताबिक 1 जनवरी 2009 या इसके बाद पैदा होने वाले अफराद को कभी भी तंबाकू फ़रोख्त नहीं किया जा सकेगा। बरतानिया में शदीद बर्फबारी से मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर, 150 परवाज़ें मनसूख। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कॉटलैंड के इलाके एबरडेनशायर में दर्ज हरारत -15 तक गिर गया, जबकि वेल्स में दर्ज हरारत -8 रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि जनूब मशरक़ी और मशरक़ी इंग्लैंड में भी बर्फबारी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बर्फबारी के बायस सड़कों पर फिसलन के सबब हादसात हुए, जबकि ट्रेन सर्विसेज भी मुतासिर हुई। इसके अलावा 150 परवाज़ें मनसूख हो गईं और कार्निवाल से स्कॉटिश हाईलैंड्स तक स्कूल बंद कर दिए गए। तवांग तसादुम, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी हुकूमत पर हमला, कहा चीनी दरअंदाजी जारी, मरकज़ खामोश तमाशाई। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के दरमियान तसादुम पर मरकज़ी हुकूमत बुरी तरह घिर गई है। उस पर अपोजिशन की जानिब से मुसलसिल हमले किए जा रहे हैं। राज्यसभा में कायदे हज़्ब इख्तलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो चीनी तजावुज़ात पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। राज्यसभा में खिताब करते हुए खड़गे ने वज़ीर आज़म के बयान का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि लद्दाख की वादी गलवान में हमारी मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी सबको मालूम है, लेकिन चीन ने अप्रैल 2020 से हमारी सरजमीन में दरारअंदाज़ी की है और डिप्सांग के मैदानी इलाक़ों में वाई जंक्शन तक चीनी दरारअंदाज़ी आज भी जारी है। नरसिंह की तालिबान ने कर्ज अदा करने के लिए अपना गुर्दा बेचने की कोशिश की, 16 लाख रुपये से महरूम। हैदराबाद में नरसिंह की तालिबान ने इल्ज़ाम लगाया है कि इससे साइबर मुजरिमों के हाथों 16 लाख रुपये का नुकसान हुआ, जबकि इसने अपने वालिद के बैंक से निकलवाए गए 2 लाख रुपये वापस करने के लिए अपना गुर्दा बेचने की कोशिश की। खाता नरसिंह तालिबा का ताल्लुक़ मकामी तौर पर गुंटूर से है। ये मामला इस वक्त सामने आया जब लड़की ने पीर को स्पंदना प्रोग्राम के दौरान गुंटूर पुलिस से रब्ता किया और उनसे मदद तलब की। जब लड़की ने अपना गुर्दा बेचने की कोशिश की तो कुछ बदमाशों ने इसे मुबैना तौर पर 3 करोड़ रुपए की पेशकश की। ताहम उन्होंने इसे 16 लाख रुपये टैक्स और पुलिस की तस्दीक के अखराजात के तौर पर मुंतकिल करने के लिए कहा। अपनी शिकायत में लड़की ने पुलिस को बताया कि जब इसने अपना गुर्दा बेचने की कोशिश तो उसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर प्रवीण राज से हुई, जिसने इसे बताया कि इसे ऑपरेशन से पहले 50% एडवांस दिया जाएगा और बाकी रकम तरीक़ेकार के बाद दी जाएगी। इसके बाद बदमाशों ने सिटी बैंक चेन्नई में एक अकाउंट खोला और इसमें 3 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। इसके मुताबिक मुतासिरा ने तस्दीकी चार्ज के तौर पर 16 लाख रुपये अदा किए
और साइबर बदमाशों से रकम वापस मांगी। फिर मुलजिम ने सम रकम का दावा करने के लिए दही जाने को कहा। मुतासिरा लड़की जब मुलजिम के बताए हुए पते पर पहुंची तो उसे जाली मालूम हुआ। दूसरी जानिब मुतासिरा के वालिद का कहना था कि उसने अपना एक ATM कार्ड अपनी बेटी को दिया था और नवंबर में 16 लाख रुपए की नकद रकम निकालने का पता चला था। जब इसने अपनी बेटी को घर वापस आने को कहा तो हैदराबाद में अपने हॉस्टल से भाग गई। पुलिस ने लड़की के वालिद की शिकायत की बुनियाद पर इसे आंध्र प्रदेश के NTR ज़िले के जगियापेटा में इसके एक दोस्त के घर से पकड़ लिया। నాకు మొన్నే తెలిసింది సరే వచ్చినాక ఇలా ఎస్పీ ఆఫీస్ కాడికి పోయేద్దామని ఇలా వచ్చాను 16,40,000 మీరు కట్టారా అమౌంట్ అమ్మాయి కట్టింది అమ్మాయి కాడ ఫోన్ పే నా అకౌంట్ అమ్మాయి కాడ ఉంది నేను చూసుకోను అసలు అమ్మాయి వాడుతుంది అమ్మాయి కాలేజీలో హాస్టల్లో ఉంటుంది కదా అమ్మాయి పే చేసింది నేను మన వెనక రీజెంట్గా డబ్బులు కోసం పోయే బ్యాంక్ కాడికి చూస్తే అకౌంట్లో డబ్బులు ఏంటంటే పరిస్థితి అంటే ఇది ఇలా జరిగింది చెప్పింది సరే అని ఎస్పీ ఆఫీస్ కాడికి వచ్చి కలిసి పోదాం అని ఇలా వచ్చాం యూట్యూబ్లో ఒక లింక్ చూసాను ఇట్లా కిడ్నీ డొనేట్ యాప్ అని ఇంకా వాట్సాప్లో వాళ్ళకి మెసేజ్ చేసి కాంటాక్ట్ అయితే ఆపరేషన్కి ముందు 3 crores తర్వాత 3 crores ఇస్తామని చెప్పారు నిజమే అనుకుని నేను మెసేజ్ చేసి వాళ్ళకి అమౌంట్ పే చేశాక ఒక ఫేక్ ఆన్లైన్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి నాకు మనీ వేశారు ఇంకా అవి నా అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి ట్యాక్సెస్ ఫీ అలా అని మొత్తం 16 lakhs కట్టించుకున్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ 1,50,000 అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడ ఎస్పీ ఆఫీస్కి వచ్చి బిఫోర్ తెలియకుండా డాడీకి తెలియకుండా మనీ యూజ్ చేసుకున్నా అవి రికవర్ చేయడానికి డొనేట్ చేద్దామని ఢిల్లీ వెళ్ళాను నేను కిడ్నీ డొనేట్ చేయను నేను పే చేసిన మనీ రిటర్న్ ఇవ్వమంటే ఢిల్లీ ఇస్తామన్నారు సో ఢిల్లీ కూడా వెళ్ళాను బట్ కానీ అక్కడికి వెళ్ళాక అక్కడ ఎవరు లేరు। आज तेलंगाना महकमे जंगलात के फील्ड स्टाफ को तरबियती प्रोग्राम का दूसरा दिन। एस राजशेखर क्यूरेटर नेहरू जियोलॉजिकल पार्क हैदराबाद के साथ ए शंकरन साबिक क्यूरेटर OSDPCCF तेलंगाना स्टेट ने जंगली जानवरों को पकड़ने और माहिराना तकनीक के साथ ट्रैंकुलाइजिंग के इस्तेमाल पर डायरेक्टर हैदराबाद नेहरू जियोलॉजिकल पार्क ने आलात के इस्तेमाल पर एक मुख्तसर लेक्चर दिया। डॉक्टर M हकीम डॉक्टर नवीन कुमार ने जंगलात के तमाम अजला के 52 शुरका को आरामदा आलात अमली तरबियत और मशक़ का अमली मुजाहरा दिया। डॉक्टर चौधरी परवीन VAS वरंगल जोनल और श्री सैयद मोइनुद्दीन रिसोर्स पर्सन वाइल्ड लाइफ ट्रैंकुलाइजिंग फोर्स हैदराबाद ने तरबियत और मशक़ पर तरबियत दी और जंगली जानवरों के मुताबिक मुख्तलिफ तकनीकों और आरामदा आलात के इस्तेमाल का मुजाहरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए राजशेखर क्यूरेटर नेहरू जियोलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने कहा कि नेहरू जियोलॉजिकल पार्क हैदराबाद वाइल्ड लाइफ की तालीम और फील्ड स्टाफ को तरबियत देने में सबसे आगे है। उन्होंने शुरका पर जोर दिया कि वो इस मौके से इस्तेफ़ादा करें जो कि जंगली हयात से महफूज मुख्तलिफ इलाक़ों में ड्यूटी सर अंजाम देते हुए बहुत मुफीद साबित होगा। तमाम शुरका में असनाद तकसीम की गई। इस मौके पर अफसरान भी मौजूद थे। क्यूरेटर नेहरू जियोलॉजिकल पार्क हैदराबाद मोहतरमा ए नागमनी, मोहतरमा श्री देवी सरावती और एनिमल सेक्शन की इंचार्ज श्री लक्ष्मण, श्री D नागाराजू वगैरह मौजूद थे। టైంలో రెస్పాండ్ చేసి ఇంకొక టైంలో దాన్ని అడ్రస్ చేస్తే మనకు మార్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది। లేదు కొన్ని కేసులు పెండింగ్ ఉన్నాయి, సాల్వ్ కాలేదు, క్యాటిల్ కిల్ కేసెస్ అలాగే పెండింగ్ ఉంది, హ్యూమన్ ఇంజురీ వాళ్ళకి డబ్బులు ముట్టలేదు, మనిషి చనిపోయిన వాళ్ళకి కాంపన్సేషన్ రాలేదు, అంటే పంట నష్టం జరిగింది రైతులకు డబ్బులు చేయలేదు, ఇటువంటి వస్తే మనకు నెగిటివ్ మార్క్ వస్తుంది। కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా దీన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటుంది। మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ సిచ్యువేషన్ ఇమీడియట్గా అడ్రస్ చేయాలి, ఇమీడియట్గా రిజాల్వ్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు ఈ పాలసీలో చాలా ఇంపార్టెంట్। దీనికి కావాల్సిన ఫండింగ్ కూడా మనకి ఇంతకుముందు లిమిటెడ్ ఫండింగ్ ఉంటుండే, ఇప్పుడు మనకు 3-4 సోర్సెస్ నుంచి కూడా ఫండ్స్ అవైలబుల్ చేయించే అవకాశం ఉంది। అఫారెస్టేషన్ స్కీమ్ అనేది ఒకటి ఉంది, అఫారెస్టేషన్ స్కీమ్లో కూడా మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ 60-70। चीफ मिनिस्टर और BRS सदर के चंद्रशेखर राव ने आज दिल्ली में राज श्यामला यज्ञ का आगाज़ किया और मुल्क की तरक्की और BRS पार्टी की कामयाबी के लिए नेक उम्मीदों का इजहार किया। दिल्ली में कायम किए गए BRS दफ्तर में पहले से ही यज्ञ के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे। दीगर इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। BRS के कई क़ायदीन यज्ञ में शिरकत करेंगे। 12 मजहबी संत राज श्यामला यज्ञ का गणपति पूजा के साथ आगाज़ करेंगे। वज़ीर इमारत और शौरा पंचायत रेड्डी तमाम इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह मुहूर्त के मुताबिक
कल दोपहर 12:37 पर और 12:47 के दरमियान अंजाम पाएगा। उन्होंने बताया कि केसीआर बीआरएस की परचम कुशाई करेंगे और अपने दफ्तर के इफ्तिताह के बाद चैम्बर में दाखिल होंगे। जनता दल के कायदीन, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और मुख्तलिफ सियासी कायदीन भी कल मुनाकिद होने वाली इफ्तिताही तकरीब में शिरकत होंगे। बिहार के नायब वज़ीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी कायद अखिलेश यादव, कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर और जेडीएस कायद एच.डी. कुमारस्वामी कल की तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। प्रशांत रेड्डी ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु से किसान कायदीन भी तकरीब में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि कल की तकरीब के ज़िमन में तकरीबन तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। वज़ीर सनत के तारकरमारों ने सनतकारों से अपील की कि वो बैनुल अक़वामी मेयार की अशिया तैयार करें और रियासत में आला मेयार की सोच रखें। रियासती हुकूमत आज डिफो को कंपनी जो मुल्क जापान से ताल्लुक़ रखती है और ऑटोमेटिक अशिया की तैयारी में माहिर मानी जाती है के साथ याददाश्त मुफ़ाहमत पर दस्तखत किए। ये कंपनी रियासत तेलंगाना में अपना मैन्युफैक्चरिंग कामों का आगाज़ करेगी। चंदन वैली में इसका आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ़ ने सनतकारों से ख्वाहिश की कि वो जदीद तरीन इख्तराई और तकनीकी साजो सामान की तैयारी में आगे बढ़े। उन्होंने जापान की डिफो को कंपनी लिमिटेड की जानिब से 450 करोड़ रुपये की सरमायाकारी का इस्तक़बाल किया। Hyderabad sent its first rocket, and this again is a Hyderabad company. This again is a E-Hub company, and super proud of that as well. Today, it's an honor to host the TGS 22 in Hyderabad, and it's a testimony to the power of entrepreneurship, and we take great pride welcoming all the dignitaries, the delegates, speakers and guests at the event. As per the Startup Genome Report, Telangana today stands among the top 10 cities in the global ecosystem in affordable talent. We also stand among top 15 in the Asian ecosystem for funding. We also stand in the top 15 in the global ecosystem in the bang for buck category. DPIIT, Government of India, has recognized Telangana as a top performer for developing a strong startup ecosystem in the state. Telangana has also ranked 4th for performance in India Innovation Index report released by the Niti Aayog. Today, Paul Graham, the founder of Y Combinator, America's leading technology startup accelerator. मरकज़ी हुकूमत ने आज वादे किया कि मरकज़ी हुकूमत के मुलाजिमीन और पेंशनर्स को जारी किए जाने वाले DNS अलाउंस और DNS रिलीफ बकायाजात जो कोविड वबा के दौरान रोक दिए गए थे काबिल अमल नहीं समझा जाएगा। चूँकि साल 2020 माली साल में वबा की वजह से एडवर्स इम्पैक्ट का असर हुआ था। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर बराए फ़ाइनेंस पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा में तहरीरी जवाब देते हुए ये बात बताई। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत को सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स एसोसिएशन की जानिब से 18 माह के डी और DR बकायाजात जारी करने को लेकर नुमाइंदगी की गई थी। मरकज़ी वज़ारत बरक़ी की जानिब से कल नई दिल्ली में नेशनल एनर्जी कन्वर्जन डे मनाया जाएगा, जो मुल्क भर में बरक़ी के इस्तेमाल और की तब्दीली में हुई तरक्की को उजागर करेगी। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी तकरीब में शिरकत करेंगी और नेशनल एनर्जी कन्वर्जन और नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी इनोवेशन अवार्ड्स तकसीम करेंगी। इस मौके पर सदर जमहूरिया EV यात्रा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगी। वज़ीर बरक़ी RK सिंह भी इस तकरीब को मुखातिब करेंगे। BRS कायद और MLC के कविता ने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से इन पर किए गए तबसरे से इन्हें तकलीफ पहुंची है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बंडी संजय के तबसरे से इन्हें काफ़ी दुख हुआ और इनके अल्फाज से तमाम ख़वातीन की तौहीन होती है। उन्होंने कहा कि बंडी संजय बहैसियत रुकन पार्लियामेंट मरकज़ से तेलंगाना की तरक्की के लिए 1 रुपया लाने में भी नाकाम रहे। कविता ने कहा कि BRS पार्टी के शानदार मुजाहरे से बीजेपी के कायदीन खौफज़दा हैं और अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि BRS अपने साथ दीगर हमख्याल जमातों को लेकर मुकाबला करेगी। साल 2001 में पार्लियामेंट पर हुए दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वालों को आज ख़राज अक़ीदत पेश किया गया।
नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर कायदीन ने पार्लियामेंटी अहाते में शहीद होने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, राज्यसभा के कायद पीयूष गोयल, राज्यसभा में कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी और दीगर वज़रा और दोनों ऐवानों के अरकान ने शोहदा को खिराज पेश किया। साबिक रुकन असम्बली गुड्डम रुद्रमा देवी का आज सुबह इनके घर वाक़े रामगिरी नलगुंडे में देहांत हो गया। वो 65 बरस की थी। गुज़िश्ता चंद महीनों से नासाजी सेहत की वजह से मुतासिर थी। साल 1985 में नलगुंडा हल्के असम्बली से तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर वह रुकन असम्बली मुंतखब हुई थी। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत असम्बली में वो नौजवान रुकन असम्बली की हैसियत से अपना नाम दर्ज करवाया था। मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में पेश आए हिंद चीन अफवाज के दरमियान झड़प में किसी भी जानी या शदीद नुकसान नहीं हुआ है। वाक़े के बाद लोकसभा में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि चाइनीज़ अफवाज की जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि चाइना के इस अमल पर हिंदुस्तानी अफवाज ने सख्त रद्द अमल का मुज़ाहरा किया। उन्होंने ये भी बताया कि झड़प की वजह से दोनों जानिब की अफवाज ज़ख्मी हुई है। उन्होंने ये भी इत्तला दी कि 11 दिसंबर को दोनों जानिब के मकामी कमांडर्स ने फ्लैग मीटिंग मुनाकिद की। उन्होंने ऐवान को इस बात का तयक़ुन दिया कि हिंदुस्तानी अफवाज सरहदों की हिफाजत के लिए पूरी तरह मुस्तैद और तैयार है। बदअज़म वज़ीर मसूफ़ के बयान पर अदम इत्मीनान का इज़हार करते हुए कांग्रेस और दीगर चंद अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से वॉकआउट किया और वज़ीर दिफा ने राज्यसभा में भी इस तरह का बयान दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने आइंदा मन की बात प्रोग्राम के एपिसोड के लिए आवाम से अपने ख़यालात शेयर करने की अपील की है, जो इस महीने की 25 तारीख को नशर किया जाएगा। वाज़ेह है कि मन की बात प्रोग्राम का ये 96वां एपिसोड होगा। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि आवाम की जानिब से दिए जाने वाले मशवरों को हासिल करने के लिए वो बेचैन रहते हैं। आवाम अपने ख़यालात नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अहदेदारों ने आज JVG हिल्स पार्क, हाईटेंशन रोड, कोंडापुर में नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त कर दिया है। मशीनों की मदद से सड़क के दोनों जानिब कायम किए गए गैर कानूनी ढांचों को बर्खास्त किया गया। पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। GHMC की जानिब से हाल ही में साउथ जोन में भी इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी गई और कई एक मकामात पर आर्जी ढांचों को बर्खास्त किया गया। दूसरी जानिब GHMC की तरफ से फुटपाथ पर बनाए जा रहे हैं ताकि पैदल चलने वालों को सहूलत हो सके। కార్పొరేటర్ ఎమ్మెల్యే కలిసి పూజలు ఇచ్చారు. వాళ్ళ కార్పొరేటర్ వాళ్ళే వచ్చి మధ్యవర్తిగా వాళ్ళే వచ్చి అరేంజ్ చేయమని చెప్పి వాళ్ళు తీస్తారు. మీరు ఓవర్ నైట్ చిన్న చిన్న పిల్లలు ఏం చేస్తారు, పొద్దున వచ్చి మీరు ఊడుకున్నాయి సార్, అన్ని వంటలు ఉంటారు. यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हुकूमत खेलों की तरक्की, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बैनुल-अक़वामी मयार की ट्रेनिंग फ्राहम करने के लिए फ़ंड्स की अजराई अमल में ला रही है। लोकसभा में सवाल के जवाब में उन्होंने तहरीरी तौर पर ये बात बताई।
اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو ہائے آداب ایوری ون۔ دوستوں میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔